and a very very warm welcome to each of you on behalf of San, on behalf of Dicky, and on behalf of entire Pantomath family. We have been discussing with the idea of having this business meet for last, I think, over 1 month or so, and when we discussed first along with Sanjay ji and Mr. Clifton, we thought that perhaps we are going to have a meet of 20 to 25 entrepreneurs whose balance sheet has been screened and who have perhaps expressed their willingness to come for IPO. And today when I entered the hall, I immediately asked Sanjay ji that how come the number has been trebled, because it's very rarely seen that what you target, eventually you have the audience 1/3 of that, but here it's the reverse, and it is not 1/3 but it's 3 times of what we thought perhaps we are going to meet. So I think big round of applause for all of you who have gathered. I know it's late afternoon, feeling very sleepy, lot of gyan, 2 more speakers to come, so I'll try to make it as interesting as possible and more importantly as relevant as possible. But before I do that, I must correct 2 lapses. When we count ourselves, we tend to forget our own number, and so was perhaps the case by San team. So we all got felicitated, but we forgot to felicitate Mr. Sanjay, who has put in great effort. So I think big round of applause, and I request Parth to present flowers to Mr. Sanjay, because without him perhaps Clifton, me and all of us would not have been here. So thank you so much for putting this show together and making this interactive meet happen wonderfully well. I have the pleasure of esteemed company. I am on the Council of Institute of Company Secretaries of India too, and I have my colleague Mr. Makarand Lele. I am sure most of you know him very well personally. He is on the Central Council of ICSI along with me, and it indeed overwhelmed to see his presence. So I request Parth to please welcome formally Mr. Makarand Lele by presenting flowers on behalf of each one of us. Thank you very much for joining and being with us. Views would be personal, needless to say, and need not be the views of the Institute, SEBI, Exchange, or any of the committees where I represent. I have been advised to speak in Hindi, so I'll perhaps do a mix of Hindi and English. What is listing and how it is beneficial? When we talk of Reliance, Infosys की बात करते हैं, Reliance करते हैं, and lot of companies जो Mr. Clifton ने example लिया, immediately thought क्या आता है? What is that immediate thought which comes to our mind? These are all big companies. How is that relevant? We are not Ambanis, we are not Tatas. Tell me something which is relevant to us. And like Shankar Mahadevan in the breathless address of Mr. Clifton, he would have also said that they were also small at one point in time. But perhaps that line doesn't seem to be appealing. That would have been missed out. उतना ध्यान नहीं गया उस लाइन पे. क्यों नहीं गया? Because we are surrounded by our own thoughts. We are in that psychological barrier of what we are and what we think that what we are.
I was in Reliance Industries for 5 years, and I was told that when the second generation joined, Reliance came out with a follow-on offering, further public offer, or next, second or third public offer. That was no electronic system, everything was manual. There used to be big application forms, and company was not resourceful enough to hire agencies. And I was told that even promoters or their family members, they used to carry gunny bags full of application forms, pick them from VT station and distribute door to door. If today we are asked to do even 1/10 of that, we will perhaps think that we are much more resourceful, too resourceful to do those jobs. So friends, all I am trying to say, that as is rightly said that those who are also small, we are perhaps, each one of us cumulatively sitting out here or individually sitting out here too, we are much more resourceful than many of those people who are being talked about. So in that note, there are a lot of questions and apprehensions when we talk of listing. Listing कैसे advantages है, क्या process है, that we will come little later. But there are some apprehensions which I thought I should prompt questions on your behalf and address those, because if we don't address and if you continue to think that how is this relevant, then I think the whole purpose of this talk may not be as useful as what it should be. So let me prompt some questions. जब हम listing की बात करते हैं, because every month I meet at least 500 promoters personally, and some of the questions I am sure many of them will be common, and I invite any other further questions which are perhaps not mentioned in this introductory slide. So is listing really an option? क्या हमारे लिए इस स्टेट पे, इस पॉइंट इन टाइम पे लिस्टिंग करना एक ऑप्शन है? और जब ये क्वेश्चन आता है तो हम क्या सोचते हैं? हमारे कंप्लायंस लेवल बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, बहुत सारी कॉस्ट होगी, मिस्टर मकरन लेले को हायर करना पड़ेगा फॉर इंक्रीज कॉस्ट, सैन को हायर करना पड़ेगा फॉर फिनेंस कंसल्टेंसी, ऑडिटिंग और टैक्स कंसल्टेंसी, एंड ऑफ कोर्स पेंटो में तो पहले ही अपनी फीस ले गया आईपीओ के टाइम, बेनिफिट तो बाद में आएगा. मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो जाएगी, माई इंफॉर्मेशन विल बी मेड पब्लिक, माई नेबर्स विल कम टू नो व्हाट आई एम डूइंग, which as of now it's privy only to me. My company will be taken over by somebody. Right now I am 100% owner. सर बोलते हैं हाँ यही क्वेश्चन है, होना भी चाहिए बिकॉज इतना मेहनत से हम बिजनेस कर रहे हैं. सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. मार्केट इंटरवेंशन बढ़ जाएगा, राइट? देयर आर लॉट ऑफ शेयर होल्डर्स, लॉट ऑफ एनालिस्ट्स. प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों हुआ, टर्नओवर कम हुआ तो क्यों हुआ, मार्जिन क्यों ज़्यादा है या कम है, कंपेरेबल क्यों नहीं है लास्ट ईयर के, डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट आ गया क्या बुक्स पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इनकम टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, पीएफ, ग्रेचुटी, लेबर, क्या आगे कम है कि यदि आप सेबी और एक्सचेंज को भी ऐड कर रहे हो, राइट? सो देयर विल बी इंक्रीज्ड रेगुलेटरी इंटरवेंशन. सो अभी सब अच्छा चल रहा है, पेंटोमैथ एंड सैन, लुक वी आर डूइंग फाइन. डिमोनेटाइजेशन को भी अभी मेंटली डाइजेस्ट कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं देखना है, वी आर फाइन द वे इट इज. कुछ इस तरह का ही सोच है. और कोई चीज जो इसमें नहीं कवर हुई? बाय एंड लार्ज अब हमको ये सोचना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपने को लिस्टिंग कराना है और आज हम लिस्टिंग करा के सबका प्रोसेस इनिशिएट करना है, दैट इज नॉट द आइडिया.
the whole idea of this. No, there is an idea to market Pentomath, Sen or Altina Securities for example. एक ही आइडिया है कि हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको डेलिबरेट करें in the light of the facts rather than going by what media report says, what hearsay says or what is talked about in general. काफी बार myth and notions becomes perceptions and perceptions are taken as realities. मेक इन इंडिया का जो कॉन्टेक्स्ट ओपनिंग रिमार्क्स में रखा था मिस्टर कांबले ने, एक बहुत ही अच्छा उन्होंने मैक्रो कॉन्टेक्स्ट दिया अबाउट द एसएमई प्लेटफॉर्म एंड अबाउट द ग्रोथ. बट व्हेन इट कम्स टू मैक्रो अगेन वो फीलिंग आती है कि मैक्रो इट्स फाइन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्री, बट टेल मी हाउ व्हाट इज रेलेवेंट फॉर अस. एंड देन वी आर पजल्ड विद दीज क्वेश्चंस. अपने पास कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें किसी इंडियन लिस्टेड कंपनी को आज तक की हिस्ट्री में टेक ओवर किया गया हो इन ए हॉस्टाइल मैनर? कोई ऐसा नाम सुना है कि ये कंपनी लिस्ट हुई और उसको किसी ने टेक ओवर कर लिया एंड मैनेजमेंट वाज थ्रोन आउट? एक भी कोई नाम है? नाम होगा कहां से? कोई हुआ ही नहीं आज तक, राइट? रिलायंस, टाटा, बिरला, ऑल ऑफ देम आर लिस्टेड. अपनी जो भी इंडस्ट्री में आप हो, उस इंडस्ट्री में से बाय एंड लार्ज कोई ना कोई कंपनी लिस्टेड है. आपके इंडस्ट्री में, रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री में कोई कंपनी तो लिस्टेड होगी बाय एंड लार्ज. कभी आपने उसकी बैलेंस शीट को डाउनलोड करके या उसकी इंफॉर्मेशन से कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप निकाल पाए? निकाल पाए कि नहीं? कुछ है ही नहीं तो कैसे निकालेंगे, राइट? इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वैट, एक्साइज, कंपनी एक्ट, आप क्या करते हैं? कंप्लायंस. और कंप्लायंस के लिए आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? कैश आउटफ्लो होता है, करेक्ट? आप एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स भी डालते हैं और पैसा भी डालते हैं और कंप्लायंस करते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए जरूरी है कंप्लायंस करना. इवन फॉर ए सेकेंड आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, बट आई एम ऑन ए डिफरेंट पॉइंट. यहाँ पे सेबी और एक्सचेंज की कंप्लायंस करके क्या करना है? पैसा लेना है. तो वहां कंप्लायंस में आप पैसा दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत कंप्लायंस करके और पैसा मिल रहा है तो बुराई क्या है, राइट? तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं, आर दे रियली जेन्युइन रियल क्वेश्चंस और मोर ऑफ नोशंस और मिथ? सो फ्रेंड्स, आई थिंक आंसर लाइज इन द क्वेश्चन itself. In India, business is basically not a commodity. Business is a way of life. Business is approach. Business is our emotions. Business is as important to our personal lives. आज हमको कोई बोले कि तुम अपना बिजनेस बेच दो, तो पहले तो हम उसको एक मार के भगा देंगे कि तुम कौन होता है, राइट? So unlike in Western culture, business is not a mere commodity for us, not mere a means of livelihood, and so are the laws made for it. When SEBI says that I protect investors, SEBI laws also protect businesses that come to public. And that's why I say, and it's not that I say, but that's the fact, that not a single company in the entire history perhaps would have been taken over without mutual consent. क्योंकि हमारे लॉज इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई शेयर होल्डर 5% भी शेयर्स मार्केट में लेता हो तो उसको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने इस लिस्टेड कंपनी में 5% से ज़्यादा शेयर लिया. तो फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी को विदाउट आपकी कंसेंट टेक ओवर नहीं कर सकता. एंड जैसा मिस्टर क्लिफ्टन ने बताया
Mukesh Ambani owns less than 50% of Reliance Industries. You think somebody can take over Reliance Industries just because Mukesh Ambani's holding is less than 50%? This whole listing platform is for what? Primary objective क्या है listing platform का? To give the growth platform to you, कि businesses को एक alternate capital raising platform मिले और businesses grow हो. When that is the purpose, can any economy afford to ask an information from company which is detrimental to the company itself? क्या हमारी इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती है कि आपकी कंपनी को लिस्ट कराएं क्योंकि आपकी कंपनी ग्रो हो, स्टेट ग्रो हो, कंट्री ग्रो हो, बट ऐसा सिस्टम हो कि उससे आपकी कंपनी को नुकसान मिले? तो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी चीज, प्रोडक्ट मिक्स, नेम ऑफ द कस्टमर्स, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ऐसा कुछ भी रेगुलेशंस बोलता नहीं है कि आपको डिस्क्लोज करना है. और बिलीव मी, जितना हम एक्सचेंज में फाइल करेंगे लिस्टिंग के बाद, उससे ज्यादा आपके बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन आज भी अवेलेबल है, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट में हो, चाहे वो सिबिल में हो, बैंक्स के पास हो या टैक्स अथॉरिटीज के पास हो. तो ऐसा कोई नया चीज अपने को नहीं देना है कि एक्सचेंज को देने से हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो जाएगी. गुरु मूवी सबने देखी होगी, करेक्ट? देखी है कि नहीं? कितना कंपटीशन था और कोर सेक्टर था. एवरीबडी वाज बिहाइंड दैट पर्सन. कोई कैसे ग्रोथ कर सकता है इतने कम टाइम में. और उस टाइम तो इतने सिस्टम भी नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं थे कि क्लिक ऑफ द बटन में पूरा इंफॉर्मेशन आ जाए. अगर कॉन्फिडेंशियलिटी इतना इश्यू होता तो आपको लगता है कि उस टाइम वो उस लिस्टिंग की सोच सकते थे? तो आज तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, वैसे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. जब उस टाइम क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं लॉस कर पाए, तो दैट ऑल्सो इज एन एंडोर्समेंट, राइट? सो ये जो क्वेश्चंस है, अब रही कंप्लायंस कॉस्ट और कंप्लायंस लेवल की बात. अभी तक जो कंपनीज लिस्टेड है फ्रेंड्स, 193 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन एसएमई प्लेटफॉर्म्स ऑफ बोथ द एक्सचेंजेस पुट टुगेदर, राइट? और जैसा बताया कि ऐसी भी कंपनीज हैं जिसमें 5 करोड़ टर्नओवर है, 2 करोड़ टर्नओवर है. जब एक 5 करोड़ वाली टर्नओवर की कंपनी अफोर्ड कर सकती है लिस्टिंग को, सो दैट शोज कि कंप्लायंसेस कॉस्ट क्या होगी और कंप्लायंस लेवल क्या होंगे. अगेन आई वुड से, अगर इतना कॉस्टली बना देते या उसको इतना कंप्लायंस लगा देते, तो क्या वो लिस्टिंग कर पाते? या क्या आप लिस्टिंग कर पाएंगे? या क्या हम लिस्टिंग के लिए आपको सजेस्ट कर लेते? प्रमोटर से एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, इसमें रिस्क क्या है? आप सबके भी माइंड में है ये क्वेश्चन. बेनिफिट तो सब बता दिया, लेकिन रिस्क क्या है? कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि जिसमें सिर्फ बेनिफिट और रिस्क नहीं हो. तो क्या रिस्क है? बहुत रिस्क है. इक्विटी इज ए रिस्की इंस्ट्रूमेंट, राइट? यू ऑल एग्री? बिना सिक्योरिटी के, बिना रीपेमेंट के पैसा लगाने का नाम है इक्विटी. आप लोन देते हो, सिक्योरिटी लेते हो, पैसा वापस उसको करना है, इंटरेस्ट के साथ करना है. तो इक्विटी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं. रिस्क ही रिस्क है, नाम ही है रिस्क कैपिटल. लेकिन रिस्क किसको है? देने वाले को, लगाने वाले को. जो इन्वेस्टर आपके ऊपर पैसा लगा रहा है. और रिस्क किसको है? मकरन लेले को, जिसने सर्टिफाई किया आपके प्रोसेस को. या रिस्क किसको है? सैन को, जिसने ऑडिट किया है. या किसको रिस्क है? पेंटोमैथ को, जिसने आपके ऊपर ड्यू डिलिजेंस सर्टिफाई करके आपको लिस्टिंग कराई. या किसको रिस्क है? स्टॉक एक्सचेंज को, जिसने अल्टीमेटली आपकी कंपनी को अप्रूवल दिया है. या किसको रिस्क है? सेबी या मिनिस्ट्री को, कि आपने ऐसी कंपनी पे ऊपर मॉनिटरिंग कैसे नहीं की. एक भी प्रमोटर का नाम आप बताइए जिसने लिस्टिंग के बाद में नुकसान किया हो. कोई ऐसा नाम है जिससे लिस्टिंग में नुकसान हुआ हो? बाई चॉइस अगर मैंने अपने आप को नुकसान दिखाया, वो अलग बात है कि मेरे ने 500 करोड़ रेस किया,
या एसएमई कॉन्टेक्स्ट में 50 करोड़ रेस किया, मेरे को बिजनेस नहीं करना है, 50 करोड़ इज माई लाइफ या 500 करोड़ इज माई लाइफ, दैट इज माई चॉइस. आई हैव नॉट रीपेड द लोन्स टू बैंक और आई हैव नॉट रिटर्न दैट पर्टिकुलर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स. कंपनी माइट गेट वाउंड अप, कंपनी माइट गेट लॉस्ट, बट प्रमोटर्स नेवर. सो रिस्क आपको नहीं, रिस्क हमको सबको है. Equity is the safest instrument in the hands of promoters and riskiest instruments in the hand of investors. तो कोई भी हर बार एक क्वेश्चन आता है रिस्क क्या है, एंड दिस इज द सेम कॉमन यूनिफॉर्म रिप्लाई कि रिस्क हमको आपसे है. और ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग करना है. यहाँ पे जितने बैठे हैं, फॉर एग्जांपल ये तो अपने क्लोज फैमिली के हिसाब से बैठे हैं कि कोई भी हमारे पास आएगा और हम लिस्टिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. अगर हमने मैक्सिमम आईपीओ किया है तो उससे कहीं 10 गुना ज्यादा लोगों को हमने मना किया होगा कि सर माफ कर दीजिए, आपकी कंपनी को अभी हम लिस्ट नहीं करवा सकते. तो फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफॉर्म है ये अपनी ग्रोथ के लिए है और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, तो नेवर बिफोर अपॉर्चुनिटी, एंड वी नेवर थॉट कि इंडिया में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है. 2 to 3 years ऑफ प्रोसेसेस, crores ऑफ कॉस्ट. आज एक अगर हम लिस्टेड कंपनी भी लेते हैं तो कितना रुपया लगता है? किसी ने लिस्टेड कंपनी लेने का कभी ट्राई किया होगा या सुना होगा संजय जी से कि एक लिस्टेड कंपनी बीएससी एनएससी वाली दिला दो? 5-6 करोड़. जितना ज्यादा शेयर होल्डिंग परसेंटेज, जितना ज्यादा क्लीन, उतना ज्यादा कॉस्ट. फिर उसमें आप डिलीजेंस करवाइए, उसकी वैल्यूएशन करवाइए, शेयर ट्रांसफर करवाइए, टेक ओवर ऑफर दीजिए, मर्जर करवाइए, सेबी अप्रूवल लीजिए. सो कम से कम 3 साल का प्रोसेस, 50-60 लाख रुपया और प्रोसेस कॉस्ट 5-6 करोड़ देने के बाद फिर भी वो लिटिगेशन का रिस्क कि पास में पता नहीं कुछ किया होगा तो आगे जाके दैट विल बी ऑन द कंपनी. आज हम अपनी कंपनी को जो 5 करोड़ किसी और की कंपनी को लेने के लिए लगते हैं, उसकी 1/10 की कॉस्ट में हम अपनी कंपनी को 3 महीने में लिस्ट करवा सकते हैं. दिस इज द अपॉर्चुनिटी वी आर टॉकिंग ऑफ. और कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती है. वी आर इन टच विद लॉट ऑफ प्रमोटर्स जो फाइनेंस फील्ड में थे, एनबीएफसी थी, ब्रोकिंग में थे, है रादर. कर लेंगे अभी तो क्या, बाद में देखेंगे, थोड़ा मार्केट डाउन है. लास्ट ईयर ऑन April 1st बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चेंज द क्राइटेरिया एंड दे हैव बैंड और restricted all finance companies to get listed on SMA. And all those people now must be repenting big time कि काश हमने बात सुन ली होती. पहले क्राइटेरिया था मिनिमम 1 करोड़ ऑफ कैपिटल. अभी जो क्राइटेरिया 3 करोड़ ऑफ कैपिटल. फॉर न्यू कंपनीज इट इज 5 करोड़. So before it becomes too late friends, before it becomes a moving target, हमको एक टाइमली एडवांटेज लेना है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एडवांटेज के लिए बना है. और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो फंडामेंटली बिजनेस के अगेंस्ट हो, रेदर ये बिजनेस ग्रोथ के लिए है. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड विद दिस बैकग्राउंड, लेट अस हैव सम मोर डिटेल्स ऑफ व्हाट द प्लेटफॉर्म इज. सो अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इज इट टू अर्ली कि चलो फायदा तो है, समझ में आ गया, रिस्क भी नहीं है, बट अभी तो यार 50 करोड़ टर्नओवर है, 100 तो हो जाए, 100 वाला 200 तो हो जाए, 10 वाला एटलीस्ट वी शुड हैव 50 करोड़, बिकॉज इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी टू डेफर द चेंज. अभी जर्मनी में एग्जीबिशन चल रही है, एक बार आ जाते हैं फिर बैठते हैं. अभी डिमोनेटाइजेशन थोड़ा चल रहा है, महीने भर बाद एक बार बैठ जाते हैं. मार्च अभी एक बार हो जाए ऑडिट, उसके बाद बैठते हैं. ठीक है, दीज आर द कॉमन रिएक्शंस. अगर हम 193 कंपनीज जो लिस्ट हुई है उसका डेटा अगर देखें, 50% ऑफ दोज कंपनीज की टर्नओवर इज लेस देन 15 करोड़.
35% of those companies have turnover only 5 crore. ऐसा नहीं है कि when we say कि 5 करोड़ वाली कंपनी लिस्ट हुई है तो एक या दो हुई होगी. Majority of these companies are on the starting phase. They are true startups. Whether they fall into the definition of startup for various purposes, that's a different thing. But friends, that is the kind of this platform. So it's never too early. There are companies which are much smaller than you. They have not only got listed, but they have rather now talking of next level. 200 करोड़ किसी का टर्नओवर है, अरे ये प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, क्या बात करते हो, मैं अभी 400 करोड़ करके मेन बोर्ड में जाऊंगा. So there could be various reasons, but the common thread is बाद में देखते हैं. There is a company which we got recently listed with more than 600 crore turnover. So friends, it doesn't really matter what size is. What really matters is what is the business model और वो कितना सस्टेनेबल है एंड कितना स्केलेबल है. आपका 5 करोड़ का भी बिजनेस हो, बट अगर उसमें पोटेंशियल है तो दिस इज द राइट टाइम. अगर आपका 500 करोड़ भी टर्नओवर हो, बट अगर वो सैचुरेटेड बिजनेस है, विदाउट मार्जिन है, या उसमें अगर आगे ग्रोथ नहीं है, तो परहैप्स यू डू नॉट हैव द ऑप्शन. सो इट इज नॉट अबाउट द साइज, इट इज ओनली अबाउट योर ग्रोथ मॉडल, योर कन्विक्शन. और जो हम लिस्ट करके आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल बाद अचीव कर सकते हैं, लिस्ट करके अगर हम 3 या 5 साल में अचीव कर सकते हैं, तो इससे बड़ा और क्या हमको प्लेटफॉर्म मिलेगा. सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट, दैट इट्स नॉट टू अर्ली और नॉट टू लेट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, एंड बिफोर इट बिकम्स टू लेट, लेट अस कैपिटलाइज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. सो दिस इज in general the questions, the apprehensions. Let us look at the trends, how the markets have actually witnessed the growth of various businesses. 193 companies, and lot of times people say अभी तो 200 कंपनी भी नहीं हुई, 4 साल हो गए इस प्लेटफॉर्म को. इंडिया में 4 करोड़ एंटिटीज है, 4 करोड़ बिजनेस में से सिर्फ 200 कंपनी. ये सिर्फ नहीं है फ्रेंड्स. BSE which is 140 years old, Asia's oldest exchange, कितनी कंपनीज लिस्टेड है उसमें? 5800. 140 साल में लेस देन 6000. और कितने मेन बोर्ड लास्ट ईयर में आए? नॉट मोर देन 10 मेन बोर्ड IPOs आई मीन. और यहाँ पे हर मंथ 10 IPO आ रहे हैं. लास्ट 2 months में there were more than 20 IPOs. So that is the kind of numbers with which SME market is growing. This 200 is not small. With this number, Indian stock market has become the fastest growing market in the world. दुनिया का सबसे ज़्यादा speedy market हो गया in terms of number of companies. एक साल में 50-60 IPO आना एक बहुत बड़ा नंबर है. और ये जो एवरेज है ईयरली, पहले 35 थे, फिर 40 हुआ, अभी 60 ऑलरेडी हो गया इस करंट ईयर में. That means perhaps the number will cross 75 this year. So the number and percentage is increasing. कहाँ से IPO आए? More than 40 cities have contributed this 193 companies. Of course, Maharashtra leads because of the awareness. हम तो इतने एडवांस लेवल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, बट ऐसी भी सिटी है जहाँ पे लिस्टिंग लोग समझते हैं कि कोई लिस्ट होगा और उसमें नाम आएगा, तो वहां से शुरू करना पड़ता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक होता क्या है. कभी समझ में नहीं आया स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है. जब हम जाते हैं कि सर ये लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो उनको लगता है कोई म्यूचुअल फंड बेचने वाले आ गए. नहीं, हमको अभी लिस्टिंग नहीं कराना है. क्रेडिट रेटिंग अभी कल ही मना कर दिया, बाद में करेंगे. यहाँ तो बहुत हम एडवांस लेवल पे हैं. दैट्स व्हाई परहैप्स आवर स्टेट इज नंबर 1, and out of 193 companies, 54 companies are from Maharashtra. Average IPO size is 8.15 crores to be precise. So basically 8 करोड़ का average IPO size है. Minimum IPO is of perhaps a crore of rupees. 1 करोड़ का minimum IPO अभी तक हमने देखा है, and maximum IPO is in about 50 crores. So that is the indicative range of minimum, maximum and average. अभी हमने एक IPO किया एग्रोफॉस,
फर्टिलाइजर कंपनी है, एंड यू विल बी हैप्पी टू नोट कि 13 करोड़ IPO 13 करोड़ का IPO में it got oversubscribed by 18 times and we got 250 crores of subscription. 250 करोड़ SME IPO में आना अपने आप में रिकॉर्ड है, and approximately 10,000 people applied. Normally in a small main board IPO also perhaps we may not see this number. So that's the kind of growth of this SME platform even on the investor perspective. So I think combined market capital of this 193 companies have crossed more than 15,000 crore, and this is the point to be understood कि ये ग्रोथ हो रहा है, बहुत सारा पैसा भी आ रहा है, बट एक चीज जो आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट है, आप अपने दिमाग में अगर अपनी बैलेंस शीट विजुलाइज करिए कि 3 करोड़ का लेट से रिजर्व है, 1 करोड़ की कैपिटल है, ओके, या लेट से 2 करोड़ की कैपिटल है, 5 करोड़ की आपकी नेटवर्थ है, कैपिटल प्लस रिजर्व, विदाउट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ कैलकुलेशन, आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू 5 करोड़ है, कैपिटल और रिजर्व। 50 करोड़ का आपका टर्नओवर है, ओके। Those of you who have more than 50 crore, don't take it offensive, it's just an example. And those who are less than 50, this is not the benchmark, अपने को 50 से भी बहुत ज़्यादा करना है, okay? So example के लिए 50 करोड़ का टर्नओवर है, और 50 करोड़ में हमारा 10% प्रॉफिट है, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद में आपको दिखाना है, अभी बुक्स पे कितना भी हो। आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी है, ये बैलेंस शीट की क्या वैल्यू है, और इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, बस ये 2 चीज समझ गए और सारा चीज थ्योरेटिकल है, और यही लिस्टिंग है। वो बैलेंस शीट जिसकी 5 करोड़ की नेटवर्थ है, 50 करोड़ का टर्नओवर है और 5 करोड़ उसका प्रॉफिट है, उसकी वैल्यू क्या है, क्या है वैल्यू बताइए आपकी बैलेंस शीट का। कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने वैल्यू किया ही नहीं अभी तक। जितनी प्रॉपर्टी है ऑलरेडी कोलेटराइज है बैंक के पास, करेक्ट। नॉर्मली अगेन दोज ऑफ यू हैव नॉट टेकन बैंक लोन्स, डोंट बी ऑफेंसिव अबाउट दिस, बट जनरली स्पीकिंग जो प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी बैंक में कोलेटराइज की हुई है, लोन तो लिया हुआ है। आज अगर आप अपने शेयर्स को किसी को दें, संजय जी को, कि संजय जी मेरा 5 करोड़ का नेटवर्थ है, मेरे को 2-4 करोड़ तो दिला दो, 1 करोड़ भी नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि वो शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, उस शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज व्हाट इज प्रिसाइजली द वैल्यू लॉकिंग, कि वैल्यू इज लॉक्ड इन द बैलेंस शीट। आज हम लैंड लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ओके, बट लैंड का अगर हमने प्लॉटिंग नहीं किया, लैंड का अगर हमने लेआउटिंग नहीं किया, लैंड को रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लैंड को कन्वर्ट नहीं किया, तो उसकी वैल्यू और सेलेबिलिटी शायद कुछ ऐसी होगी। तो जैसे लैंड की हम वैल्यू बनाते हैं, वैसे ही एक फाइनेंशियल लैंड हमको खड़ी करनी है, और वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप ऑलरेडी कर रहे हो, राइट। सो ये 5 करोड़ का प्रॉफिट वाला बैलेंस शीट, जिसकी बुक नेटवर्थ 5 करोड़ है, अगर हम इसको 20 टाइम्स से भी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 100 करोड़। ये बैलेंस शीट की वैल्यू है 100 करोड़। तो नोशनल वैल्यू है, क्या फर्क पड़ता है, शेयर को लिस्ट किया, वैल्यू कर लिया, नोशनल वैल्यू नहीं है सर। 100 करोड़ के शेयर प्लेस करके आप उसके अगेंस्ट में पैसा ले सकते हो। कोई 10-20 करोड़ का यूनिट खरीदना है, आप उसको 20 करोड़ नहीं देके अपने 20% शेयर दे सकते हो। 5 करोड़ के आपके कंपेंसेशन पैकेज है, एम्प्लॉय बोनस है नेक्स्ट 5 इयर्स में, 5 करोड़ की जगह 1 करोड़ कैश दीजिए और बाकी के 4 करोड़ के शेयर दे दीजिए। पैसा कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, 10% शेयर बेच दिया, 10 करोड़ रुपए आ गया। तो ये जो शेयर है, जो अभी 0 वैल्यू के है,
या एट बेस्ट बुक वैल्यू के है 5 करोड़, ये शेयर 100 करोड़ के हो जाते हैं फॉर एग्जांपल इफ द शेयर्स आर लिस्टेड, और इसका कोई भी डिमोनेटाइजेशन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपनी करेंसी के मालिक खुद हैं और हमको इस करेंसी के लिए गवर्नर का स्टैंप नहीं चाहिए दैट आई प्रॉमिस टू पे बेरर अ सम ऑफ 2000 rupees because 1000 rupees no longer exist. This is the real wealth creation, and this is not theory. We are not here to invent something. We are not engineers or we are not doing something great. All that we are saying is कि जो ऑप्शन रिलायंस, टाटा, बिरला, इन्फोसिस के पास अवेलेबल था, जो ऑप्शन अपने से 20 गुना 50 गुना बड़ी कंपनी के लिए अवेलेबल था, वो ऑप्शन गवर्नमेंट ने आज हमको दिया है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। एक भी ऐसा ब्रांड बता दीजिए जो 100 साल पुराना हो और लिस्टेड नहीं हो। मैं ये नहीं कहता कि एक भी नहीं है, बट कहना का मतलब है बहुत ही फ्यू ब्रांड्स होगा, पर्टिकुलरली ग्लोबल ब्रांड्स तो आपको मिलेंगे ही नहीं। सो लिस्टिंग से जो एक और बेनिफिट मिलता है, हालांकि वो क्वांटिफाइबल नहीं है, वो है परपेचुअल सक्सेशन, कि जनरेशन से जनरेशन जो बिजनेस चलता रहे। आपने जो इतनी बड़ी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया है, वो बिजनेस को जो अमरत्व देना है या सक्सेशन देना है, दैट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली बाय लिस्टिंग। आज टाटाज में भले ही कुछ भी हो, जनरेशंस नहीं है कंटिन्यू करने के लिए, बट फिर भी बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है। रिलायंस में 3rd जनरेशन आ गई है। टेक एनी नेम फॉर दैट एग्जांपल। व्हाई? बिकॉज द शेयर्स आर लिस्टेड and companies are perpetually getting succeeded years after year, generations over generations. So these are थोड़े बहुत trends है, perhaps we will skip because so अगर हम SME की last slide, अगर हम SME की बात करें कि थोड़ा numbers की बात करें कि ये जो बात हम कर रहे हैं रिलायंस, टाटा, बिरला या 5 करोड़ वाली टर्नओवर, 100 करोड़ की वैल्यू, एक्चुअली क्या है? आप पहली कंपनी देखिए फ्रेंड्स, नॉट दैट कि मैंने कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में डेटा लिया, इट्स रैंडम। फर्स्ट कंपनी इज ए केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम गुजरात। 40 करोड़ उसका टर्नओवर होगा, आईपीओ के टाइम 40 भी नहीं था, 30 to 40 करोड़ का टर्नओवर उसका, और हमने आईपीओ लेके आए 7.97, 8 करोड़ का आईपीओ मतलब 32 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर 25% का 8 करोड़ है तो 100% का मतलब हो गया 30 करोड़, 32 करोड़। आज उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 160 करोड़। अभी थोड़ा प्राइसेस डाउन है, अदरवाइज इसकी मार्केट कैप 225 करोड़ हो गई थी। मतलब एवरी वर्किंग डे उनकी मार्केट कैपिटल 1 करोड़ से बढ़ रही है। केबल मैन्युफैक्चरिंग 40 करोड़ वाली कंपनी का 8 करोड़ जिसका आईपीओ था, उसका मार्केट कैप अगर 200 करोड़ हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं 200 हो सकता? दूसरा एग्जांपल आप देखो, मोमाई अपैरल्स, इन्होंने अपने ग्रुप से 3 कंपनी लिस्ट की, आशापुरा इंटीमेट्स, मोमाई अपैरल्स एंड वुमेन नेक्स्ट लाउंड्री। फर्स्ट जो आईपीओ आया था वो 20 करोड़ का था, मतलब 80 करोड़ का मार्केट कैप। आज उसका ग्रुप का मार्केट कैप देखेंगे 800 करोड़ का मार्केट कैपिटल इन ओनली 2 or 2.5 years। और आज के प्राइस पे ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, क्वांटम म्यूचुअल फंड और जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है, उन्होंने इन्वेस्ट किया और 100 से 150 करोड़ रुपीस उन्होंने अभी मार्केट से रेस किया। सो ये जो हम बात कर रहे हैं, थियरी बात नहीं कर रहे हैं कि लिस्टिंग से 10 टाइम्स हो गया, उससे कहीं ज़्यादा लोग अपना वैल्यू बना रहे हैं। विडली रेस्टोरेंट, सबने कामत रेस्टोरेंट का नाम सुना होगा, देखा भी होगा, हाईवेज पे कामत के बहुत सारे हर डिस्टेंस पे आते रहते हैं वो आउटलेट्स। 10 रुपीज में फ्रेंड्स हम आईपीओ लेके आए थे दिस ईयर इटसेल्फ। ये कामत रेस्टोरेंट वही है जो ऑर्किड होटल जिनकी है, विड्स होटल जिनकी है, उनका ही एक ऑफ शूट है उनके फैमिली मेंबर्स का, विडली रेस्टोरेंट्स, विठल्स इडली, विडली रेस्टोरेंट्स। 10 रुपए वाला स्टॉक आज के दिन में 150 पे ट्रेड हो रहा है। फरवरी में हमने लिस्ट किया था और अभी आज मतलब हमने
8 महीने भी नहीं हुए होंगे, और आज 10 रुपये वाला 150। और ये कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल इसके लिए दे रहा हूँ बिकॉज वी ऑल प्रोबेबली नो एटलीस्ट बाय नेम व्हाट कामत इज। तो जब वो रेस्टोरेंट कंपनी 10 वाला चीज 150, और 150 में कोई सेलर नहीं है, ओनली बायर्स। आज हमने एक FPO खोला है, मार्केट रिसर्च, MRSS। 12 रुपये में हम उसका IPO लेके आए थे लास्ट ईयर 16 जुलाई 2016 को लिस्ट करवाया था। अभी उसका मार्केट प्राइस इज 160, और अभी हम उसके लिए 10 करोड़ फंड रेज कर रहे हैं आज के प्राइस पे। उसका टर्नओवर कितना? नॉट इवन 5 करोड़। तो फ्रेंड्स, ये जो डेटा है, वी आर नॉट हियर टू सेलिब्रेट देयर सक्सेस। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है कि कहीं ना कहीं हम जितना डिले कर रहे हैं, एवरी डे फॉरगॉन इज द वैल्यू फॉरगॉन फ्रेंड्स। Mr. Clifton always tell that if we lose 1 crore, we may earn 100 crores. But the time lost today will perhaps never come, and I don't have to perhaps tell this because all of you are much more experienced and senior than me. But point I am trying to say कि जो वैल्यू प्रपोजिशन, जो वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस लार्जर एंटरप्राइजेस के पास अवेलेबल था, जो करोड़ ऑफ रुपीस खर्चा करके सालों की मेहनत के बाद, उसमें भी आधे मेन बोर्ड IPO हो सकता है फ्लॉप हो जाए या फेल हो जाए, बट हर एक SME IPO इज सर्टेन कि एक बार SME IPO आया तो उसका लिस्ट होना ही है, और वो अपॉर्चुनिटी आज अपने डोर स्टेप पे है। यस मैम। So of course, again, not to market, but we are leaders in SME IPO with managing maximum IPO, and perhaps with great humility, I must share with pleasure too that we have represent most of the milestones which is done in the market. So we are doing a lot of initiatives like organizing this kind of workshops, working with Ministry and SEBI for policy formulations of SME, so on and so forth, and we continue to do that with your good wishes and support. What is SME? क्या हमारी कंपनी एलिजिबल है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, और MSME एक्ट की जो डेफिनेशन है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जो सीलिंग लिमिट्स है, उससे इसका कोई रेलेवेंस नहीं। अगर अपनी पेड अप कैपिटल इज लेस देन 25 करोड़, अपनी कंपनी एलिजिबल है लिस्टिंग के लिए। ओनली पॉइंट विच वी हैव टू चेक कि अपनी पेड अप कैपिटल कितनी है, बाकी सब दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोसेस, वी आर एलिजिबल फॉर लिस्टिंग। सो पेड अप कैपिटल, एंड आई एम श्योर ईच ऑफ द कंपनी सिटिंग आउट हियर पेड अप कैपिटल 25 करोड़ के नीचे ही होगी, राइट। सो कंपनी एलिजिबिलिटी इतनी कम रखी है गवर्नमेंट ने कि सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आके इसका बेनिफिट उठाए प्लेटफॉर्म का। तो चाहे टर्नओवर 5 करोड़ हो, 5 करोड़ नेटवर्थ हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ टर्नओवर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज द कैपिटल बेस इज देयर एंड वी कैन थिंक ऑफ लिस्टिंग अवर कंपनी। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आफ्टर 2 इयर्स अगर हमारी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ की होती है, तो वी शिफ्ट और माइग्रेट फ्रॉम SME टू मेन बोर्ड सीमलेसली। कि वो मेन बोर्ड की कंपनी के लिए जो 5-6 करोड़ रुपए, जैसे मोंगा साहब ने बताया कि लगता है, हम बिना कोई कॉस्ट, जो इनिशियली जो नेग्लिजिबल कॉस्ट में हम लिस्टिंग करवा रहे हैं, विदाउट हैविंग एनी एडिशनल कॉस्ट्स, कंपनी कैन शिफ्ट फ्रॉम SME टू मेन बोर्ड। 21 companies have already got migrated. So when I say can, meaning it is happening. Again, it's not theory. काफी सारे दिमाग में एप्रीहेंशन थे शुरू में जब मार्केट आया था कि माइग्रेशन बोल तो रहा है गवर्नमेंट, लेकिन 5 करोड़ 10 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी को माइग्रेट करेगा कैसे? कुछ ना कुछ तो कैच होगा। बट अगेन दैट इज द अट्रैक्शन विच गवर्नमेंट हैज पुट ऑन टेबल फॉर ऑल ऑफ अस टू इंसेंटिवाइज दैट मोर एंड मोर ग्रोइंग कंपनीज। और ऐसा नहीं कि कोई फेवर कर रहा है, ये पॉलिसी लाके या स्कीम लाके कोई अपने पे फेवर नहीं कर रहा है, बिकॉज ईच वन ऑफ अस आर द ग्रोथ कैरियर्स। डबल डिजिट ग्रोथ होगी कैसे इंडिया की? लार्जर एंटरप्राइज तो करने से रहे,
because their growth priorities have been changed to shifted to maintenance priorities. कि जितना बना है अगर उसी को मेंटेन कर ले तो भी अपने आप में चैलेंज है. But each one of us sitting out here जिनका turnover 10 crore है, 20 crore है, 50 crore है, they can and they do double their balance sheet every second and third year. Because base is small. 10 crore turnover वाली कंपनी को 20 crore लेके जाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. And that's what all of us are doing. So ये जो क्वांटम ग्रोथ है एज ए सेक्टर अगर हम सब SME को पूल करें, so this is the growth which country aspires for and this is the growth which you are achieving. And by getting onto this platform, जो हम आगे आने वाले 10 साल में करने वाले हैं ये हम 2 साल में कर सकते हैं और जिन्होंने लिस्ट कर लिया वो कर रहे हैं. So that's the kind of growth which we are talking about. You can skip this. अब SME प्लेटफॉर्म की जो बात करें, देयर आर मेन 3 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स. जो डिफरेंसेस है वो सिर्फ 3 है. नंबर 1, जो ट्रेडिंग इसमें होता है या एप्लीकेशन होती है वो 1 लाख एंड लॉट्स में होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने स्टॉक की प्राइस 50 रुपीज है तो हमारी जो लॉट साइज है that lot size will be 3000 shares. So anything between 1 lakh to 1.5 lakhs सेबी के डिफाइंड नॉर्म्स है, तो 1.5 lakhs becomes the investment. तो कई बार ऐसा डाइकोटोमी लगता है, कन्फ्लिक्ट लगता है कि रिलायंस का शेयर हम 1000 रुपीज में इन्वेस्ट करके एक शेयर ले सकते हैं, बट मोंगा का शेयर्स की हम बात करें तो 1.5 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट. हर चीज के पीछे बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग है. अपनी जो कंपनीज है वो बिजनेस लाइफ साइकिल को अगर हम विजुलाइज करें तो इनिशियल पॉइंट पे है. वी हैव नॉट गॉन थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ a 1000 crore कंपनी और a 5000 crore कंपनी. सो बाय डेफिनेशन वी फॉल इन द रिस्की कैटेगरी. रिस्क फॉर whom again? For the investors. That's why SEBI thought कि जो इन्वेस्टर्स जिनकी रिस्क टॉलरेंस है, कि जो 1 लाख इन्वेस्ट करके अगर बाय चांस कंपनी में नहीं ग्रोथ हुआ और 1 लाख का जीरो भी हो गया फॉर एग्जांपल, बट दैट विल नॉट कम ऑन द सर्वाइवल और लाइवलीहुड ऑफ दैट इन्वेस्टर. सो ए 10,000 रुपी अर्निंग इन्वेस्टर, मैन ऑन द स्ट्रीट इन्वेस्टर, losing 1,000 system can't afford, but perhaps a 10 lakh earning investor loses 1 lakh, it's fine because he can afford, although the percentage is same. So इसके लिए सेबी ने कहा कि जो इन्वेस्टर मिनिमम 1 लाख इन्वेस्ट कर सकता है, जिसकी रिस्क टॉलरेंस 1 लाख है, वो ही इसमें आए. सो दैट्स वाई दिस लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज ऑफ 1 लाख. जब हम बात करते हैं एवरेज आईपीओ साइज 8 crores, मिनिमम इन्वेस्टर चाहिए 50. सो नंबर ऑफ ट्रेड्स, लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं आफ्टर लिस्टिंग, इज बाउंड टू बी लो. कई स्क्रिप्ट हो सकता है पूरे वीक ट्रेड नहीं करे. तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है 50 लोगों ने, ठीक है, एग्रोफोर्स में 10,000 आए अलग बात है, बट बाय एंड लार्ज इन्वेस्टर बेस कुड बी 200 to 500 ऑन एन एवरेज. तो ये जो 200 लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, अगर उनको एग्जिट करना है, बिकॉज अल्टीमेटली तो लोग इन्वेस्टर एग्जिट करके पैसा अपना रिटर्न लेके बाहर निकलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक बार लगा दिया तो दैट्स द एंड ऑफ इट. सो उनको एग्जिट देगा कौन? सो दैट्स व्हाई देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ मार्केट मेकिंग. 5% आईपीओ का मार्केट मेकर के पास रहेगा, और उस टाइम अगर कोई बायर नहीं हो तो मार्केट मेकर विल एक्ट एज बायर. सो इफ आई हैव इन्वेस्टेड इन आईपीओ and I want to sell the shares, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है, तो मार्केट मेकर विल एक्ट एज बायर काउंटर पार्टी. मेरे को अगर आईपीओ में नहीं मिला शेयर्स, या मिला भी और मेरे को और लेना है, बट कोई सेलर नहीं है शेयर, तो आउट ऑफ दिस 5% इन्वेंट्री मार्केट मेकर विल सेल. सो इतनी सोची समझी उन्होंने मैकेनिज्म बनाई है कि कोई भी इन्वेस्टर बेचना चाहे और लेना चाहे, लेकिन अगर काउंटर पार्टी नहीं हो तो मार्केट मेकर इज अवेलेबल टू एक्ट एज काउंटर पार्टी. सो लॉट ऑफ टाइम्स मीडिया में आपने पढ़ा होगा, इनफैक्ट हमारे जो स्टोरीज आती है एसएमई के ऊपर, लिक्विडिटी कम है, नहीं है. सो फ्रेंड्स, दिस इज नॉट ए लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म, दिस इज नॉट ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कि सुबह किसी ने लिया, शाम को बेच दिया और प्रॉफिट आ गया. दिस प्लेटफॉर्म
doesn't need those investors. This is basically a capital formation platform where investors can come, be with the company for let's say a little longer, 1 year, 2 year, and grow with the company. And that's why the return on this market, average return is 8 times, 9 times in a year. कि आज जिसने 1 लाख लगाया है या 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उसका 1 साल या 1.5 साल के बाद में 10 करोड़ हो गया है. बट अगर कोई चाहे कि आज मैं 1 लगाऊं और आज ही मेरे को 1.25 मिल जाए, so perhaps this is not the platform. So as a promoter, you should also understand the nature of this market and also the protection for both investors and entrepreneurs. So lot size, market making, and minimum investor is 50. Other than these three, the IPO and the benefits and the platform is as same as main board. There is no difference between main board IPO and SME. Process wise, SEBI approve नहीं करती है document, and exchange को authority delegate कर दी गई है along with the merchant bankers. So we carry out due diligence, we give the certificate, file with exchange, exchange clears, and that's it. SEBI को information जो होती है सिर्फ file करते हैं only for record and information. SEBI doesn't look into and doesn't approve or otherwise the offer document. Benefits की अगर हम बात करें without getting into individual benefits, 4 parts में we can divide the benefits, and the foremost is operational benefit. Next take one. And this particular case will perhaps make the things clear. पहला जो कॉलम है unlisted, and the assumptions are not fictitious. कि हमने जो ये listed वाला कॉलम बनाया है, ये ऐसे नहीं कि just for the sake of numbers लिख दिया है. Every example represents some company, numbers might have been changed. Listing से इतना branding और visibility मिलता है कि कामत रेस्टोरेंट we may know, but it might not be known in UP for example, it might not be known in Rajasthan for example, but today whoever is looking at capital market, they definitely know what Kamath is and what Vidli restaurant is. The number of chains of stores, store meaning the outlet, the restaurants, have grown multifold, and that's what branding and visibility can do. अगर हम 10% भी अगर increase मानते हैं sales में after listing because of branding and visibility, that comes without cost, and that's what is the assumption, that our sales will grow by let's say 10%. It can grow much more, but just for the example sake, अगर 10% भी assume करते हैं, expense will not increase in that proportion because we are not spending in branding marketing. It is by sheer visibility on national frontiers. So our profit at operational level will go up, and after listing, ऐसे भी cases है friends जिसमें interest is reduced by banks by 2%, 3%, and against the same collateral कि अगर 30 करोड़ फंड किया गया है 45 करोड़ की एसेट बेस के अगेंस्ट में, कि अगर किसी की एसेट बेस इज 45 करोड़ और बैंक ने मार्जिन डिडक्ट करके 30 करोड़ फंड किया है, लिस्टिंग के बाद में सेम 45 करोड़ के एसेट पे 60 करोड़ भी फंड किया है. सो बेसिकली सेम कोलैटरल विल गिव यू एडिशनल फंड्स, दैट टू एट रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दैट्स व्हाट इज द इंटरेस्ट. It is reduced from 84 to 66 because after IPO the credit rating improves and interest cost is credit rating is improved and interest cost comes down. So as a result, by not doing anything, the PAT, the profit and the return stands increased substantially in this example from 15 to 20%. So that is the kind of operational benefit listing gives. There are a lot of advantage on tax, particularly in today's context. Each and every transaction of capital is subject to tax. You issue shares on discount, you transfer on premium, issue on premium, you buy back. If the company is unlisted, all the forms of capital transactions are subject to 20 से 33% tax.
after listing all these taxes become legitimately zero. आप 1000 rupees premium में इशू करिए या 10 रुपये में ट्रांसफर करिए, there is no tax whatsoever. So it becomes a legitimate tax planning tool. And lot of times in India, listing is actually looked at as a tax planning tool. Second, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि लिस्टिंग के बाद हम बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाएंगे, particularly in Gujarat and Rajasthan when we go, lot of times we counter with this question कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करेगा. ओके, चांसेस ऑफ us getting raided by department will increase क्योंकि हम लिस्टेड हो गए हैं और सबका ये परसेप्शन होगा कि अभी हमारे पास बहुत पैसा होगा. बट रियलिटी इज द अदर वे राउंड. Section 68 of Income Tax Act provides a shelter that Income Tax Department cannot question the source of capital of IPO money. अगर आज आप 5 करोड़ की कैपिटल लेके आते हो, immediately you will get an inquiry कि ये पैसा कहाँ से आया और जिसने दिया उसका सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है, आता है कि नहीं आता है. ठीक है, लोन लिया, कहाँ से लिया, वो लोन वाली बैलेंस शीट मंगाएंगे. Ultimately link will go to Kolkata and it will get added to you, correct? But in IPO, so all those raids, income tax, all those things, you will perhaps seldom hear कि listed company में रेड हुई है. इनकम टैक्स का नॉर्मल स्क्रूटनी है, वो एक अलग बात है. आपकी बिजनेस प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू असेसमेंट वगैरह, दैट ऑफ कोर्स इज देयर. बट टैक्स शेल्टर, legitimate tax planning, lesser harassment is actually the reality. So what we are told and what we assume, perhaps the reality is the other way around. Okay, so listing gives lot of such benefits. Directors' liability, personal guarantees are actually done away with after listing. So actually the directors' liability becomes limited, and these all are the benefits of listing, which perhaps cannot be quantified, but they are immense benefits because your all personal guarantees are absolved, interest cost comes down, income tax looks at you more favorably, and you have legitimate tax tools to plan your taxes, at least on capital transactions. वेल्थ क्रिएशन हमने बात कर ली है कि एक 20, 30, 50 करोड़ वाली टर्नओवर वाली कंपनी भी 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ में ट्रेड हो रही है और आज के प्राइस पे उस पर ट्रेड हो रहा है. तो दैट इज व्हाट इज वेल्थ क्रिएशन. सो जो हमने इस इनिशियल स्टेज में जो एग्जांपल लिया था, 5 करोड़ नेटवर्थ कंपनी एंड 100 करोड़ वैल्यू, सो दैट्स द गैप जिसको हम वैल्यू लॉक बोलते हैं. एंड दैट वैल्यू अनलॉकिंग happens only and only through listing. And again, at the cost of repetition, this is not trial and error. This is what has been happening legitimately for the benefit of the business and for the benefit of investors across. And that is what is the opportunity provided to all of us at this stage, without waiting for all those big eligibility criteria and without making over a big balance sheet necessarily. Process, I think, as a promoter, it doesn't really matter much in terms of process. There are partners who are there, professionals who are there to take care of process, whether it is due diligence, whether it is audit, whether it is secretarial compliances, whether it is making of prospectus. So I think once we are convinced that this is the option, which is not only a luxury, a comfort, but rather a necessity, which will give a wealth creation platform, which will bring us in dictating terms in terms of our stakeholders, why shouldn't we look at listing? Rest all will be taken care of by the professional team, and everything from end to end will be taken care of, and it can be a very, very smooth execution. That much I can assure, and the company can indeed be listed in, let's say, 3 to 4 months. Market making, I think we have understood. So by and large, I think second last. Yeah. By and large, we have discussed all the concepts. The whole idea, again, I would say that what one would have thought of after, let's say, n number of years, after achieving a particular size and scale,
this opportunity is available right now, right here. And people smaller than us have taken that benefit. People bigger than us in numbers, those have also taken benefit of it. And all these benefits are with us at doorstep, very, very negligible cost and process. And everything, as I said, is very thought through. So why migration after 2 years? Because this 2-year time is given to all of us, the companies listed I mean, that they can be there on SME platform for 2 years, adapt themselves to the market. Not that it's too difficult, but still easier saying than done. And in 2 years time the systems get ready, the people get ready, the teams get ready, and after 2 years, if we think that yes, this is the time to go on to the main board, and there's again an option, it's not compulsion. We can opt for migration or we can even opt beyond 2 years. So we can be there on SME platform as long as we want till our capital is less than 25 crores, or after 2 years, immediately on or after 2 years, we can opt for migration, which is almost seamless. We have to make an application to exchange and do the resolution of shareholders, and we can migrate. So list your company, raise the capital which you need, scale up the business, migrate onto the main board on 2 years, after 2 years, further raise capital once your value becomes truly unlocked and the fair values are established, because a 5 crore balance sheet may not be benchmarked to 100 crore on day one. It also needs time for market to know you. It also needs time for market to understand your behavior, your reaction, and that's how. So a lot of times people ask, what happens in 1 year or even less than that, that Widley stock is 150 rupees. Has their business grown to that level from what it was on listing? What happened to MRSS that 12 rupees stock is 160? It's not that the prices have increased today in 6 months or 1 year. Their value was like that even on day one. Even today your value is 100 crore, the way we have taken example. But it has to be benchmarked. So there is a process, there is a time involved in bridging this gap. And that can happen only once we list. So we list at a particular valuation, and then gradually with the market making and with the investor support, we arrive at a fair value. And that's where we can perhaps raise more capital, because by that time we would have moved inch forward in our growth journey, and we can plan for bigger capital raise, preferably after we go on to the main board and keep on expanding business and try to become the industry leader. So that's the kind of growth path which people are actually witnessing and experiencing, and that's what perhaps I thought this slide will be a good slide to summarize and conclude. And I must share that a couple of companies sitting out here, they have already working with us, or rather we are working with them. So I request Mr. Arun Monga to please stand up, and big round of applause that he has taken the path of going to the market, and I am sure each one of us will support Monga, and their IPO should also get a record subscription, I am sure. And another company is Lelesis. They are not there today. They are not there, just left. So again, compliments to them for taking this right call. And believe me friends, from bottom of my heart, I am not requesting Mr. Monga to stand up or not taking Lelesis name because that's a revenue stream for us, but because they have taken a right call, and ultimately the biggest beneficiary will be themselves only, not the merchant banker or not the other people. As part of ecosystem, all stakeholders will stand benefited, but the foremost benefit is for the company and this sector, who accounts for 60% employment in India. 40% export is by SMEs. 47% manufactured output is by SME, friends. And that's where this opportunity, we perhaps can fill this gap. We can perhaps be the driver of the growth
which our country aspire for, and that's why this opportunity to all of us. So don't just worry about the platform, the sustainability of the platform. This can go nowhere. The platform is going to stay. So address your apprehension that this is platform perhaps may not be available, but yes, the opportunity may not remain in this much cost and processes, because more and more number of companies coming up, it will get tightened and before it is being done, we should take the advantage. And I will not even say that be the early mover advantage, because 4 years have already gone by and 200 companies have already got listed, but be it as may, better late than never, and this still it's a good time to come forward, list the company and be on the growth path. From Pentomat and SAN and all the mentors and friends like Mr. Clifton, we can assure that we are not the biggest or the largest just by numbers. It is sheer because of our efforts, our passion and our contribution, not only towards the businesses with which we work, but because we are devoted to the development of this market. And I am sure with the help and support of each one of you, we will take each of you to public and contribute more and more towards the growth of not only the Pune city, but for the entire state and entire